جو ولیوں کی ولایت کو چھیننے کا حق رکھے غوث پاک، غوث پاک، جو بھوکے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ کھلائے، غوث پاک، جو نئے کپڑے نہ پہنے تو قسمیں دے کر اللہ پہنائے، جو پیاسے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ پانی پینے کی بات کرے، وہ کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن، وہ کون؟ جلاؤ الخاطر سے بات میں نے پیش کی. یہ غوث پاک مردے زندہ کریں، غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کریں، غوث پاک چوروں کو ولی بنائیں، غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے، غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں، غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے، غوث پاک یہ. لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو. کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے، شرم نہیں آتی. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں. تو پیش ہیں پہلے کچھ کہانیاں. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہے اس زمانے کے. کوئی سبز چولے آلہ تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھڑ کے مس کر دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے. یہ کیا بات کرتا ہے یار. آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا، اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مطلب کچھ بھی. جی جدو 1965 عیسوی وچ انڈیا دا ایک بزدل جہا پائلٹ پاکستان دی افواج نے جدو گرفتار کیتا تو انہوں پوچھا تو کی کرنا آیا سا؟ کہندا میری ڈیوٹی سی کہ میں بم راوی دے پل تے گرا کے راوی دا پل توڑنا سی تاکہ رابطہ نہ ہو سکے علاقیاں دا آپس دے اندر تے اسی راوی تو ادھر دے علاقے تے قبضہ کر لئیے. تے کہندا میں پل دے اوتے بم گراون واسطے گیا، میں جوں پل دے اوتے بم چھوڑدا سا ایک سبز چولے والا بابا سی او داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہوئی سی. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج آپ کے بابے کہاں ہیں، کیونکہ آج آپ کے بابوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ مسجد اقصی جو کہ ہمارا بھی قبلہ اول ہے، آپ کا بھی قبلہ اول ہے، آپ کے بابوں کا بھی قبلہ اول ہے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج آپ کے بابے نہیں آ رہے. فلسطین میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ناحق شہید کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں. لیکن آج آپ کے بابے تو نہیں آ رہے ہیں. آج تو آپ کے بابے فلسطین پر گرنے والے بم کیچ نہیں کر رہے. مطلب آپ کے بابے ہیں کہاں یار؟ آپ کے بابوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں مسجد اقصی چاہیے. لیکن آپ کے بابے تو مسجد اقصی دے نہیں رہے ہمیں. کہہ دو نا کہ یار تم تو پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آج ہمیں صرف مسجد اقصی دلا دو. ہم عمر بر جہاں پر کہیں گے وہاں پر آئیں گے، جو کہیں گے وہ کریں گے. ہم آپ کے غلام، ایک تو ہوتا ہے مرید، ہم آپ کے غلام بن کر رہیں گے. اف تک نہیں کریں گے. صرف ایک بابا قبر سے نکل کے آئے اور ہمیں مسجد اقصی فتح کر کے دکھائے. لیکن آج آپ کے بابے نہیں آ رہے. اگر آج کوئی بابا آ گئے نا تو بھائی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بابے قبر سے نہیں نکلتے. لیکن آج آپ کے بابے نہیں آ رہے. ان بابوں کا کیا فائدہ ہے جو کہ تب نہیں آ رہے جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور ایک بات بتاؤ، جب USA نے یعنی امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور عراق میں تو آپ کے بڑے بڑے بابا دفن ہیں، تب تو کوئی بابا قبر سے نکل کر نہیں بچانے آیا تھا. تب تو کسی بابا نے عراق کو نہیں بچایا تھا. یہاں تک کہ جو بم تھے وہ مزارات پر بھی گرے تھے، بہت سارے مزارات جو تھے ڈیمیج ہو گئے تھے، لیکن کسی بابا نے کوئی بم کیچ نہیں کیا. یہاں تک کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے ان کا مزار بھی تھوڑا ڈیمیج ہوا تھا، تب تو انہوں نے کوئی بم کیچ نہیں کیا.
तब तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। भाई कहां है आपके बाबे? तब भी कोई बाबा नहीं आया। और मुझे ये बात बताओ, जब 1965 में आप ठीक ठाक लड़ रहे थे, आप अच्छा डिफेंड भी कर रहे थे, अच्छा डिफेंस भी था, तब आप अच्छी कंडीशन में थे, आपके बाबे जो है मदद के लिए आ गए, मदद कर रहे थे। लेकिन जब 1971 में आपके 93,000 जो सिपाही थे उन्हें सरेंडर कर दिया, उन्हें हथियार डाल दिए, तब कोई बाबा नहीं आया। तब कहां थे आपके बाबे? जब 1971 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, तब आपके बाबे कहां थे? तब कोई बाबा नहीं आया। क्यों नहीं आया तब कोई बाबा? नहीं, मतलब ये क्या बात हुई कि भाई जो जंग आप ठीक लड़ रहे हैं उसमें आपके बाबे आ जाते हैं, लेकिन जिस जंग में आपको बाबों की जरूरत होती है तब बाबे गायब हो जाते, तब कोई बाबा नहीं आता। 1971 की जंग हार रहे थे आप, तब आपके बाबे कहां थे? तब बाबों की जरूरत थी, लेकिन तब कोई बाबा नहीं आया। ठीक है, तब कोई बाबा नहीं आया। तब आपके सिर्फ जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वही थे। आपके बाबे तो कहीं नजर नहीं आए। नहीं, मतलब ये क्या बात हुई? जो जंग आप जीत रहे हैं उसमें बाबे आते हैं, जो जंग आप हार रहे हैं उसमें आपके बाबे नहीं आते। और तब आपके बाबे कहां थे जब काबा पर हमले हुए थे? हजर अस्वद को चोरी किया गया था 22 साल तक। 22 साल तक हजर अस्वद काबा में नहीं था। जी हां, अपने जगह पर नहीं था। 22 साल तक हजर अस्वद काबा में नहीं था। और यह बात भी मालूम थी कहां है हजर अस्वद, किसने चोरी किया है। लेकिन कोई जिंदा मुर्दा बाबा कोई करामत नहीं दिखा पाया। किसी बाबे ने कब्र से निकलकर हजर अस्वद नहीं लौटाया। कोई जिंदा बाबा है, किसी जिंदा बाबा ने भी हजर अस्वद लौटा के नहीं दिया। तब कहां थे आपके बाबा? और फिर आप कहते हैं कि बाबे जो है कब्रों से निकल के आते हैं, हमारी मदद करते हैं, बम कैच करते हैं, लड़ते हैं। भाई तब कहां थे आपके बाबे? ध्यान रहे कि मैं किसी अल्लाह के वली की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह के वलियों में मानता हूं, लेकिन मैं इनकी इन फेक स्टोरीज को, इन झूठी कहानियों को एक्सपोज करता हूं कि इन लोगों ने हलवे के लिए, इन लोगों ने पैसों के लिए, दौलत के लिए झूठी कहानियां गढ़ रखी हैं और ये झूठी कहानियां इस्लाम के नाम पर लोगों को सुनाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इन कहानियों को एक्सपोज करता हूं और किसी वली की तौहीन नहीं करता। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी, अब्दुल कादिर जी, अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा, क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, मां जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे, मां वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे, मां अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान की जुबान 7 से लेकर 9 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, लेकिन उसी जुबान से 15 करोड़ किलोमीटर लंबी फेंकना कोई इनसे सीखे नहीं। सीखे इनसे यार, मतलब इतना लंबा फेंकने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें पता भी है सूरज कितना दूर है हमसे? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। वहां से यहां तक रोशनी को, यानी लाइट को भी पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं, और तुम्हारे बाबे तो यूं वहां पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता भी है रोशनी की रफ्तार क्या होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और तुम्हारे बाबे यूं करके वहां पहुंच जाते, मतलब हद होती है फेंकने की। सहाबा के बारे में जानते हो? सहाबा जब सफर किया करते थे तो घोड़ों पर करते थे, ऊंटों पर करते थे, और जिस हिसाब से दूरी होती थी, डिस्टेंस होती थी, उसी हिसाब से उनको टाइम लगता था। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, जैसी दूरी होती थी वैसा टाइम लगता था। लेकिन आपके बाबे यूं पलक झपकते ही 15 करोड़ किलोमीटर दूर चले जाते। मतलब हद होती है यार, हद होती है फेंकने की। और तुम्हें मालूम भी है कि सूरज कितना गर्म है? उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है लगभग 5 से लेकर 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका जो कोर है, जो अंदर है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। और तुम्हारे बाबे यूं वहां चले जाते हैं। जब रोमन्स के साथ जंगें हुई तो कई सारे सहाबा को गरम तेल की कढ़ाइयों में शहीद किया गया और वो शहीद हो गए, लेकिन आपके बाबे यूं
वहां पहुंच जाते सूरज पर और उतनी गर्मी सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब यार हद होते हैं फेंकते कि यार तुम बेहद फेंकते हो। खुद ही सहाबा के वाक़ात सुनाते हो, उनके साथ क्या हुआ सुनाते हो, किस तरह शहीद हुए। सहाबा तलवारों से शहीद हो जाते थे, उनको जख्म लगता था, खून आ जाता था, वो शहीद हो जाते थे। लेकिन आपके बाबे जो हैं वो सूरज पर चले जाते हैं, वो कहाँ कहाँ चले जाते, मतलब फेंकने की हद होती है। अच्छा हुआ कि उन दिनों बाकी सैयारे दरियाफ्त नहीं हुए थे, वरना आज गौसे पाक यानी शेख उल क़दर जीलानी हर सैयारे पर जा चुके होते और हर सैयारे के लिए उनकी अलग अलग कहानी इन लोगों ने घड़ ली होती। हालांकि शेख उल क़दर जीलानी, जिन्हें गौसे पाक कहते हैं, अल्लाह के वली हैं और उनका इन कहानियों से कोई ताल्लुक नहीं है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हुजूर गौसे आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए हैं, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया तो फिर क्या खाना चाहते हो? कहने लगे हजरत अगर हलवा मिल जाए, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए क्या मजे होंगे। आपने फरमाया एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया ये काफी होगा तुम्हें, है पत्थर, फरमाया ये तुम्हें काफी होगा। कहने लगे जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया क्या जबल कुन हलवा, ओ पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया। इस दुनिया में करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं और इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। एक काम करते हैं, आप ऐसे 4-5 बाबा लेके आइए जो लात मारकर पत्थर का हलवा बना देते हैं और पत्थर हम लेके आते हैं, वो पत्थरों पर लात मारते रहेंगे और हम वो हलवा जो है उन भूखे लोगों में तकसीम कर देंगे। आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा और आपके उन बाबाओं को भी सवाब मिलेगा और लोगों को भूखे पेट सोना भी नहीं पड़ेगा। खैर आपकी कहानी को छोड़कर आते हैं हदीस की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 7324 7324। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो वक्त भी पाया है जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे के दरमियान भूख की वजह से गिर पड़ता था। गुजरने वाला ये समझकर मेरी गर्दन पर पांव रखता था कि मैं पागल हो गया हूँ। हालांकि मुझे जुनून नहीं होता था, बल्कि भूख की वजह से मेरी ये हालत होती थी। सहाबा तो भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, सहाबा तो भूख की वजह से अपने पेटों पर पत्थर बांध लेते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी सहाबी ने पत्थर पर लात मारकर उसका हलवा बना दिया हो, किसी सहाबी ने पत्थर को लात मारकर उसकी बिरयानी बना दी, हमने कभी नहीं सुना। लेकिन आपके बाबों को हल्की फुल्की भूख लगती है, वो पत्थर पर लात मारकर उसका हलवा बना देते हैं। फेंकने की हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है। आपको शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद के मिंबर पर बैठकर आप लोग झूठी कहानियां बयान करते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।